Assamese cinema, from Jyoti Prasad Agarwala's Joy Moti to global recognition through films like Village Rockstar, a journey of resilience, culture, and revival. First question to Rimaba is you are a one woman crew for editing, production, directing, shooting a film, art direction, everything. And yet you are not a professional filmmaker. How do you do all the work by yourself? And you also believe that it is a blessing for your career. What do you say? Thank you for having me, and I'm really glad to be here. And hello, everyone. সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ. Yes, I take it as a blessing because I was in a point of my life when I really wanted to do something, and I was also asking myself, like, what is my purpose of life? And that's how I think, because I never thought of becoming a filmmaker. So I came to become, I came to Mumbai to become an actor actually. Uh, so because filmmaking was not my dream, when I started watching world cinema, I looked at it just as a painting, and the kind of resources I had, I come from nothing. I didn't have that kind of resources in my life, and I was not doing also well in my career as an actor. So I didn't have that courage, the kind of life I was living in Mumbai. It was not easy. So from that, even my family, when I decided to make movies, then they were also, I mean, surprised. What, ki etia ko etu ki hola ko, mane college korila, everything, jo bhi, it's very difficult now ki ma Assamiyat katha kom, Hindi ne English, but anyway, so. Whatever you're comfortable in, anything. মোৰ দেউতা যিহেতু headmaster, he is a founder headmaster of a girls school. So we had that time printing press, school, I mean, bookstore. So I come from that, and so my parents, they always wanted me to be go in academic line. And when I cleared my NET exam and I mean cleared my masters, so they wanted me to be something. Then I wanted to become an actor, and then now filmmaker, directing a film was very different for them. It was a shock actually. So in that situation, I think मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, मुझे यही बोलना है कि जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, whatever I am doing, it's love. It's just love, and I'm taking that storytelling through cinema. It's like a worship for me. And every time I'm questioning, actually जब मैंने वो film कर दिया with the success of Village Rockstars, जब मैंने खुद देखा film को, तो मुझे लगा कि मैंने कर दिया ये सब, it's me, I have done it, how? So that was the question, it came to my mind, that I'm here to, I have something, और ये मेरा karma है. Probably I have been, it is somewhere like I have been learning this from, in my different lives. You're very So passionate about filmmaking. I I think that am. has helped you. Thank you. Yeah. Yes, I think so. Uh, Barulda, you have directed, played a lot of roles. Direction is also a part of your career. And you have
done so many movies, Hindi movies, like Dil Bechara, Chapak, Pepper Chicken, Kapil Dev's biopic, 83, Bhedia, Medan, and there, to name a few, there are so many. And there are web series also. How do you maintain a balance between all the platforms? Because they demand different, characteristics. What, according to you, is a more challenging platform and a rewarding one? নমস্কাৰ প্ৰথমতে প্ৰতিদিনক ধন্যবাদ জনাম মোক ইয়ালৈ মতাৰ আৰু কথা পতাৰ সুযোগ দিছে फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एसामीज और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं असमिया फिल्म इंडस्ट्री के फेटर्निटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वही कसम लेने वाली बात जो कहूँगा सच कहूँगा जैसे कि बचपन से ही एक सपना था मृगा का वो मिथुन चक्रवर्ती वाला वो एक धनुष लेके ऐसा था ना वो दैट पिक्चर इम्प्रेस्ड मी ए लॉट मुझे लगा मैं भी काला हूँ मिथुन चक्रवर्ती काला है मुझे भी मिथुन चक्रवर्ती बनना है मिथुन बनना है क्योंकि मेरे से पहले सच बताऊं ट्रूथ मेरे से पहले असमिया फिल्म इंडस्ट्री में कोई काला एक्टर नहीं था तो मैं लकी हूँ तो पुलो गोगोई डायरेक्टर को मैं थैंक्स टू पुलो गोगोई जिन्होंने मुझे लेके आया जो भी हो आजकल समय के साथ समय बहुत बड़ा फैक्टर है अब आपका क्वेश्चन का आंसर तो मेरे हमारे खानदान में कोई थिएटर करने वाले है नहीं तो सपना था एनएसडी जाना क्योंकि अगर अभी भी जैसे यंग स्टार विश्वास करते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो मुझे लगा कि मिठुन बनने से पहले मुझे खानदान में तो कोई है नहीं लिगेसी तो है नहीं क्लार्क का बेटा हूँ सो एनएसडी ज्वाइन किया लकीली मुझे मिल भी गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तो थर्ड ईयर सीखने के बाद जब एनएसडी आया वहाँ देखा कि एनएसडी ने मुझे ये सिखाया तुम्हें योगा भी करना है तुम्हें इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है वेस्टर्न लिटरेचर भी पढ़ना है शेक्सपियर भी है कालिदास भी है भास भी है जो कालिदास से थोड़ा सा उल्टा कौरव को हीरो बनाता है पांडव को विलेन बनाता है उस प्रकार का भी इंटरप्रिटेशन देखा धीरे धीरे मन में जो मिथुन चक्रवर्ती था वो धीरे धीरे दब गया मुझे लगा बेटा तू असमिया है तू असम वापस चले जा और अपने क्षेत्र में अपने घर पे ही थिएटर करना शुरू कर दिया और अपने जहन में दिमाग में जो भी कुछ आइडियाज आते थे उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने ये सीखा था एनएसडी में थिएटर का कोई फिक्स नोटेशन नहीं है कोई भी कलाकार इनको ही देखिए जैसे शुरुआत की इन्होंने जिस प्रकार से फिल्म बनाई उस प्रकार से कोई नहीं बनाया भी नहीं था इससे पहले शायद सो मन में जो भी कुछ आते थे उसको एक्सप्लोर करते गया थिएटर में बेसिकली आई एम एन एक्टर तो मुंबई जाना छोड़ के असम में जाके थिएटर का अपना ग्रुप खोलने लगा क्योंकि उस समय अलग अलग ग्रुप के साथ मैं काम करता था एनएसडी आने से पहले टाइमिंग का बहुत अगर 3 बजे रिहर्सल है तो 3:30 बजे आते हैं कुछ 5 बजे आते हैं कुछ और लड़कियों को कोई एक्ट्रेस को छोड़ने के लिए जाएंगे तो वो भी और इश्यू हो जाता है उस समय की बात तो मुझे लगा नहीं हम कब शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे फिक्स कर लिया हमने और रात को हम रिहर्सल नहीं करेंगे रात की बात कुछ अलग हो जाती है और अलग से मैं अभी भी अलग हूं थोड़ा सा सो दिन में रिहर्सल करते हैं टाइम पे ध्यान देते हैं हम लोग एक अंदर एक शक्ति स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ और हमेशा मेरे गुरुजी बीबी करण जी ने कहा था हमेशा नए लोगों के साथ काम करो मक्का जाने की जरूरत नहीं है ऊपर से दुआ मिलते रहेंगे अभी भी मेरे सीनियर के साथ कभी काम करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे साथ इतने यंग स्टार्स है तो ये आज ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ ये भी करता हूँ बस বাৰুণদা সেইটোৱে কওঁ আপুনি মাল্টি টেলেণ্টেড আপুনি থিয়েটাৰো সম্ভালি ৰাখিছে চিনেমাও সম্ভালি ৰাখিছে চাৰিওফালে यशपाल जी आपने बहुत सारे मूवीज़ किए हैं लगान जैसे हिट
मूवीज़ में गंगा जल, अब तक 56, अपहरण, राउडी राठौर, आरक्षण, सिंह इज किंग, बहुत सारे मूवीज़ हैं, सब बोलूँगी तो मेरा कॉन्क्लेव ही ख़त्म हो जाएगा, ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। सर, आपको एसमीज़ फिल्म इंडस्ट्री ने क्या आकर्षण किया? आपने बॉनी मान में एक्टिंग की, और एसमीज़ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, मैं हेलो नमस्कार। ऐसा नहीं है कि मैं आसामी फिल्म से अट्रैक्ट हुआ। मैं आसामी डायरेक्टर से और कहानी से अट्रैक्ट हुआ सबसे पहले, और फिर उसके बाद असमिया सिनेमा से, या जितना भी मैं समझ पाया, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना भी मैं समझ पाया, तो विश्वजीत बोरा जो डायरेक्टर है, ही इज़ माई फर्स्ट डायरेक्टर जिसने मुझे उसमें काम दिया। 2 फिल्में मैंने किया उसके साथ, और उससे मुझे असामीज एक्टर्स के बारे में, इनके साथ भी, ये भी थे उसमें, बारुल भाई देखने में साउथ इंडियन लगते हैं, आसामी थिएटर करते हैं, हिंदी सिनेमा करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करने वाले मेरी बीवी साउथ इंडियन है ना। साउथ इंडियन है, राइट राइट राइट। तो वो पहले, सबसे पहले मेरा वो था कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और उसमें आसामी लोगों से मिल रहा हूँ, आसामी कल्चर के बारे में जान रहा हूँ, और आसामी के बिहू के बारे में, इसके बारे में, क्योंकि उसमें बहुत कुछ था, कल्चर, फोक और उसके बारे में, कल्चर के बारे में बहुत कुछ उस फिल्म के अंदर था, उन दोनों फिल्मों के अंदर। तो इसलिए मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला, उनकी परंपराएं, उनके रिचुअल्स, उनके, क्योंकि किसी को भी फिल्म देख करके आप नहीं जान सकते, आपको उसके कल्चर के अंदर उनके खाना कैसे खाते हैं और कैसे बैठते आपने हैं। बहुत टाइम वक्त बिताया काफ़ी टाइम बिताया असम में? था वहाँ पर जी, और वो उसमें मैंने वो किया, और फिर मैंने यहाँ पर मैंने बोला भी था बाहरुल भाई को कि बाहरुल भाई दूसरे वाले हैं, तो उनको बोला भी था कि मैं तो आसामी सिनेमा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बोला आप रीजनल सिनेमा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपने भी किया है, तो उस भी उस आसामी सिनेमा को बेस बना के हम कुछ बोल सकते हैं। तो मेरा ये है कि जानू बरुआ जी से मैं सबसे पहले मिला था, उनसे भी पहले, कि जानू बरुआ जी का एक फिल्म मैंने किया था जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि प्रोड्यूसर जी की डेथ हो गई थी। तो वो मेरे पहले डायरेक्टर हैं, मतलब हिंदी फिल्म था, जानू बरुआ जी के साथ सिक्किम के अंदर हमने शूट किया था, पेलिंग एक जगह है वहाँ पर। तो लेकिन वो हो नहीं पाई, तो उनकी वजह से मैं उनको जान पाया कि कितनी फिल्में की हैं, कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं इन्होंने, उनके बारे में थोड़ा सा जाना था। फिर विश्वजीत बोरा के बारे में, फिर आपके वहाँ पर मैंने वो भी देखा, क्या बोलते हैं आसाम में, कौन सा वो होता है थिएटर है, रायमोमन। हाँ, जो कलकत्ता में भी होता है ना, वो बंगाल में भी होता है, यात्रा, हाँ वो देखा मैंने। फिर मैंने देखा कुछ एक्टरों के अंदर यात्रा के गुण हैं, तो हमारी बात होती थी एक्टिंग को लेकर के, तो हम बोलते थे कि जैसे यात्रा में क्या है, लाउड है सब कुछ, जैसे पारसी थिएटर में होता है, तो यात्रा में भी काफ़ी लाउड एक्टिंग होता है। तो कुछ एक्टर थे जो फिल्म में भी वैसा ही कर रहे थे। तो फिल्म के अंदर और इसके अंदर बहुत फर्क है। तो हमने बताया कि भाई देखो, हॉलीवुड फिल्में देखो, इंग्लिश फिल्में देखो, उनका पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, इतना आराम से बोलते हैं जैसे लाइफ चल रही हो। तो आप इस लाइन को, इस डायलॉग को इतना ऊंचा क्यों बोलना चाहते हैं? मैं तो यहीं खड़ा हूं पास में, तो मुझे बोलो ना। तो बोला मैं कैसे बोलूं, मतलब उन्होंने बोला ऐसे बोलो, ऐसे मतलब ऐसे बोलो, हाँ मतलब ऐसे ही बोलो, जैसे तुमने अभी रिहर्सल नहीं किया, ऐसे ही बोलना, बस वही बोलना है। एक्चुअल में भी, एक्शन के बाद भी ऐसा बोलो। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा पूरे इंडिया में, मतलब जब नए जो बिगिनर्स होते हैं उनको जैसे स्क्रिप्ट मिलती है ना, वो मतलब ऐसा लगता है कि सन्नी देओल की तरह खा जाऊंगा, पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, उनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सत्यदेव दुबे हमारे टीचर हैं जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी सबको डायरेक्ट किया है, सिखाया है, स्मिता पाटिल सबको। तो वो हमने उनकी एक्टिंग क्लास की थी, तो वो एक पैराग्राफ लिया था, उसको आप, एक नाटक भी किया था हमने, बोले कोई बोलेगा नहीं, मन में पढ़ोगे सब,
तो हम रीडिंग करते थे, मन में पढ़ते थे बस हल्के 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 हल्के, क्योंकि पहले ही रीडिंग में आप अपने कोमा, फुल स्टॉप, कहाँ गुस्सा होना है, कहाँ ये होना है, किस पे अंडर स्ट्रेस देना है, किस शब्द पे, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं शुरू में ही बिना कंटेंट जाने। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो वो थोड़ा थोड़ा हमने आपस में एक दूसरे से सीखा और बड़ा मजा आया। और दरअसल विश्वजीत बुरा ने अभी एक बहुत बड़ी फिल्म की है, कुछ की है, उसने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया था लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो तांता टूट गया थोड़ा सा। Okay, thank you. Village Rockstar খন accidental আছিলে নে intentional আছিলে? আৰু এটা ইমান সুন্দৰ গাঁৱৰ কাহিনী এটা লৈ আপুনি যোনটো বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰিলে, তাৰ বাবে একটু আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি অসমীয়া সমাজে, কাৰণ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গ্লোবাল প্লেটফৰ্ম দিয়া আপুনি এগৰাকী অন্যতম মহিলা। আৰু অলপমান ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ কথা কওকচোন আপুনি। আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে আপুনি মোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে, কিন্তু মই মোৰ অসমীয়া যিটো সত্তা, মোৰ যিটো সমাজ, মোৰ যিখিনি মানুহ, মোৰ মাটি, তেওঁক মই সেই যিটো মই পাইছোঁ সৰুৰ পৰা, that grace, you know, I saw in my village, in my people, in my land, I think I am grateful, মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। কাৰণ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ এক্সিডেণ্টেল আছিলে। यशपाल जी है तो मैं हिंदी में या हाँ ओके গতিকে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ মই আচলতে অন্তৰ্দৃষ্টি বুলি চিনেমাখন কৰাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। মই যেতিয়া ভাবিলোঁ যে মই চিনেমা বনাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই চিনেমাখনৰ কাহিনীটো অন্তৰ্দৃষ্টিখন লিখি মই আচলতে এখন মোৰ প্ৰথম ছবি আছিলে বোলছবি। সেই সময়ত মই যিটো অৱস্থাত আছিলোঁ, মোৰ যিটো মানসিক অৱস্থা আছিলে, এটা যিটো মানুহৰ কনফিউজন থাকে, দেৰ ৱাজ এ কনফিউজন ইন মাই মাইণ্ড এণ্ড লটছ অফ ডাউটছ, কি কৰি আছোঁ আৰু কি হ'বলৈ গৈ আছে মই জানিও নাজানো, ইউ ন' ইট ৱাজ এন আনন'ন ৱৰ্ল্ড ফৰ মি। এণ্ড চামহাও অনেষ্টলি স্পিকিং তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ইমান সেনেকুৱা ছাপৰ্ট নাছিলে। ফেমিলিয়ে, পৰিয়ালে বহুতখিনি মানে তেওঁলোকে দিছে, মানে সংগী দিছে। কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয়, আপোনাৰ লগত মানুহ আছে কিন্তু আপুনি মানে কি অকলে হয়, কাৰণ তেওঁলোকে, মই জানো যে তেওঁলোকে মোৰ সাথ দিছে কাৰণ মোৰ পৰিয়াল হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ চকুত সেই বিশ্বাসটো নাই। আৰু তেনেকুৱা এটাই অৱস্থা মই অন্তৰ্দৃষ্টি কৰাৰ সময়ত পাইছিলোঁ। যিখিনি লগত মই কাম কৰি আছিলোঁ, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ চকুত এটা অবিশ্বাস আছিলে, এই কি কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা থাকে। তো তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত যিটো মই এক্টিং, অভিনয়ো কৰিব ভালকৈ নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া মই চিনেমা বনাব আহিছোঁ, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত পইচা পাতি কম আছিলে। আৰু তেনেকুৱা সময়ত মই ওৱান ডে, মানে যেতিয়া মই বহাগী বিদায়ৰ সময়ত সৰু সৰু কেইটামান ল'ৰাক মঞ্চত উঠি তেওঁলোকে কিছুমান গান, যেতিয়া থাৰ্মকলৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মানে সঁজুলি লৈ মেলি তেওঁলোকে যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিলে, ইমান সিহঁতি চেলিব্ৰেট কৰিছে, ইমান এনজয় কৰিছে। মই ভাবিছোঁ মই কিহৰ কাৰণে কান্দি আছোঁ। আৰু তেওঁলোক ধৰক দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ দেউতাকসকলে, বা আমাৰ এখন গাঁৱততো মহিলা বহুত কমেই কৰ্মী, আজিকালি ফেক্টৰীবিলাক হোৱাৰ, কোম্পানী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজিকালি নাইট ডিউটিও কৰে। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল, যিটো আমাৰ সামাজিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইটো বহুত বেলেগ ধৰণে সলনি হৈ গৈ আছে আমাৰ গাঁওবিলাকত এতিয়া। সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা। কিন্তু যেতিয়া মই মঞ্চত এওঁলোকক দেখিলোঁ, তেওঁলোকে দে গেভ মি কনফিডেঞ্চ। এই ল'ৰাকেইটাই আচলতে ছোৱালীজনী ধুনু তাত নাছিল, they were only boys, but how they celebrated life without living in deprivation, and they know that they wouldn't be able to buy those instruments. So there it started actually, and tar pisot moi
নিজে কেমেৰাটো আছিলে লাকিলি ফৰ্চুনেটলি আৰু এই যে বাচ্চাকেইটা সিহঁতে 3 বছৰ মোক গাঁৱত তেতিয়া মানুহে লাহে লাহে এই পাগল হৈছে নেকি বুলি কাৰণ কেতিয়াবা বেছিকৈ আমাৰ সেইফালে মিউজিক ভিডিঅ' কৰিব যায় ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিফ্লেক্টৰ বা ডাঙৰ ডাঙৰ এটা বহুত মানুহ যায় চিনেমা বনাবলৈ লাহে লাহে তেওঁলোকে অকণমান এইটো ঘৰত ঠিকেই আছে চব এই কি হ'ল বাৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল কোনোবা ল'ৰা হঠাতে সিহঁতি নাহা হৈ থাকে মাকে বা আহিব নিদিয়ে বাট লাহে লাহে সিহঁতি কিবা এটা যেন সাংঘাতিক এটা বিশ্বাস মোৰ ওপৰত সিহঁতৰ হ'ল আৰু মই তাহাঁতক ক'লোঁ যে আমি যি কৰি আছোঁ হোৱাট উই আৰ ডুইং আই হেভ চাম বিলিভ ডেট আই মিন উই আৰ ডুইং চাম ৰাইট থিং আৰু সিহঁতক মই কৈছিলোঁ তহঁতি দেখি থাক না ইউটিউবত ওলাই আমি সৰুতে কেনেকুৱা আছিলোঁ এই ক'ৰবাত এখন দুখন ফটো আছে আমিতো সৰুতে কেনেকুৱা আছিলোঁ আমি ভালকৈ এতিয়া নায়েই দেখা তহঁতৰ চিনেমা যিয়েই নহওক তহঁতি নিজকে দেখা পাবি এতিয়া কি কি কৰি আছ এইবিলাকে মানে ফুচুলাই কিবা কিবি কৰি তাৰপিছত সিহঁতি খুব মোৰ লগত থাকিলে গতিকে আই এম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল টু দেম এণ্ড ইন দেট প্ৰচেছ আই চ হাউ I mean, floods taking our crops, how our farmers, our people are working, the resilience and the power of innocence. Because I left my village like I think যেতিয়া কলেজৰ সময়ৰ তেতিয়াৰ পৰাই গতিকে making Village Rockstars was somehow connected to my roots, again, It was both intentional as well as accidental, I would say. I think it transformed my life, especially. Village Rockstars is not just a film for me, It's a reflection. It's a reflection, it's more life, it changed my life actually. So thank you. Okay. Barulda, you had joined Tara Theatre. Apuni Tara Theatre join korisile in 1992 at a roller karne Heer Ranja. Tara Theatre hoise British Asian Theatre Company. It is a trailblazing company and apuni eta role etar karne apuni join korisile. Aru আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমীয়া থিয়েটাৰ বা আমি কোনটো চিনেৰিঅ' দেখা পাওঁ কেনেকুৱা আমি অসমীয়া থিয়েটাৰলৈ মানুহ এতিয়াও যিমান সেই 1990sত গৈছিলে এতিয়াও সেনেকৈ থিয়েটাৰ চাব যায়নে বা চাবলৈ যাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব মানুহক ओके ये बहुत लंबा क्वेश्चन है एनीवे हाँ लंदन में गए थे वो एक हीर रांझा प्रोजेक्ट प्ले था हमारे निर्मल पांडे जी निर्मल पांडे एक प्ले में काम कर रहे थे तो अचानक उनको शेखर कपूर ने बुला लिया यहाँ पे वो रोल छोड़ के आ गया निर्मल पांडे का रोल मैं करने गया तो वो देन टूर हुआ एक्सपीरियंस वहाँ जाने के बाद लगा तो हीर रांझा सबको मालूम ही है पाकिस्तान वो स्टोरी है हाँ भेंडिट कुन के लिए वापस आ गए तो मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया वहाँ जाने के बाद मैंने देखा वो साउथ अफ्रीकन एक्टर भी है इंडियन लंदन के ब्रिटिश एक्टर भी है जबकि इंडियन बेस्ड स्टोरी है तो कैसे बैठेंगे ऐसे बैठेंगे बैठने के लिए ही वो लोग 4-5 घंटे लेते थे हम आराम से जमीन पे बैठ जाते थे उनके लिए वो आसान नहीं उनके लिए बहुत कठिन था तो मुझे लगा रही इसके लिए मैं क्यों आया हमारे लिए आसान था वो तो एनीवे अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अंदर ही अंदर मुझे एक हिम्मत मिला अरे वी आर बेटर देन देम ऐसा अहंकार नहीं क्योंकि अंदर एक स्वाभिमान होता है ना हमेशा ट्रेवलिंग लोगों को हेल्प करता है असमिया फिल्मों में देखिए आप ज्योति प्रसाद আগৰৱালা হোক জাহানুদাই হোক শংকৰদেৱই হোক বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই হোক मैक्सिमम মানুহ জাহানুদাই কক रीमाय কক जिए ट्रेवल करिसे जो घर से असम से बाहर आए हैं वही उनको पता चलता है घर क्या चीज होते है माँ क्या होती है जमीन क्या होती है क्या होता है दरअसल वो प्रूफ कर दिया असमिया में ये बहुत रिफ्लेक्शन है तो वहां आने के बाद हमने अपने हिसाब से करते रहे
आपने और एक पूछा कि असम या जो यहाँ क्या क्या फर्क पड़ा? हाँ, तो थिएटर। राइट, तो वहां से आने के बाद मेरे मन में भी ऐसा कुछ था। अभी अभी इन्होंने इनका जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूँ। 2 फिल्म के लिए असम आए थे, इन्होंने कहा हमारा असम एक्टर लाउड करते हैं, वो करते हैं, ये सही है, कुछ ये थिएटर रिलेटेड है, क्योंकि कुछ भी हो असम में सब लोग मैनेजर है। हम लोग जो डायरेक्शन देते हैं बेसिकली दे आर मैनेजर। वो किसी हालत से एक प्रोड्यूसर को मैनेज करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। ओके, वो फिल्म बनाते हैं, वो स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, जबकि साहित्य के साथ, स्टोरी के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता, फिर भी रातों रात लिख देते हैं, वो बात करके प्रोड्यूसर के, जो भी हो, आधे में रुक जाती है फिल्म। टेक्नीशियन वाले काम बंद करके पैसा ले लेते हैं, एक्टर फंस जाते हैं, हम लोग पैसा नहीं मिलता हमें। एनीवे, तो एक्टर क्या करे? एक्टर जाते हैं थिएटर, कॉमर्शियल थिएटर करने। तो कॉमर्शियल थिएटर वो अलिफ लैला टाइप हूं हाँ, और तो ज्यादा ही हो गया आजकल। एनीवे, तो एक बात ये रजनीकांत जैसा 3-3 बार करते हैं, ए तुम कहां से, कोरपराहिली, समझ गए? सो ये लार्जर देन लाइफ, आप जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो सेम एक्टर, क्योंकि पैसा नहीं मिलता तो हमें जाना पड़ता है मोबाइल थिएटर, कॉमर्शियल थिएटर। ये भी हकीकत देखो ना, आप मुंबई में रहते हो, पैसा मिलता है आपको, असम में तो ऐसा नहीं है ना। सो और जो फिल्म मेकर होते हैं ज्यादातर तो रीमा नहीं है, तो फिल्म मेकर के भी वो हर डायरेक्टर एक्टर से एक्टिंग वो डिस्कवर नहीं कर पाते, सिचुएशन को कैसे डिस्कवर करे, एक्टर को भी नहीं, यानी एडुकेटेड नहीं है। प्रोड्यूसर जैसे एडुकेटेड नहीं है। लकीली प्रोड्यूसर एडुकेटेड थे, जानूदा बहुत लकी थे कि उनको एडुकेटेड प्रोड्यूसर मिले, इसलिए जानूदा कई फिल्में लगातार बने, होइलोधर बोरवा उसके साथ मिलके, जानूदा लकी। तो अभी बात है एक्टर, एक्टर को अभी धीरे धीरे यंग एक्टर, कोरोना के बाद मैं कह रहा हूं, लोग समझने लगे ट्रेवलिंग, मनी मन ट्रेवल, रूम में रहते हुए भी ट्रेवलिंग शुरू हो गया। ईरानियन फिल्म देखने लगे ये लोग, अमेरिकन फिल्म, कोरियन फिल्म देखते देखते, और बहुत पढ़ाई करते हैं। आजकल जनरेशन बहुत स्मार्ट है, इसका रिफ्लेक्शन अभी अब फिल्मों में देखोगे आजकल। लेकिन आप जैसे कह रहे हो ना, बलराज साहनी जैसे दिग्गज एक्टर हमने देखे हैं, बिजुदा है, तसद्दुक यूसुफ, विष्णु खारगरिया, जिनसे हमने सीखे हैं। अभी आदत बिगड़ दी हमें हमारे कमर्शियल थिएटर, लेकिन कमर्शियल थिएटर ही थिएटर नहीं, और ग्रुप थिएटर भी है। जैसे आप आए थे हमारे ग्रुप थिएटर है, ग्रुप थिएटर में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, रिस्क उठाते हैं। बेटा यही एक्टिंग नहीं है, बातें करो, बिहेव करो, सिचुएशन को समझो। कोई मॉड्यूलेशन नहीं होता है जिंदगी में। आई लव यू बोलने के लिए थोड़ी ना आई लव यू, लव पे ज्यादा ध्यान दो, नो। आजकल देखने से पता चल जाता है ये बंदा मुझे प्यार करते है या नहीं। आई लव बोलने की जरूरत ही नहीं है। देन दैट इज सिनेमा, दैट इज रियलिटी, दैट इज जिंदगानी। हम जो डायलॉग, जब डायलॉग शुरू होता है सिनेमेटिक, वो एक्टिंग मुझे लगता है वहीं पे खत्म हो जाता है शायद। सिनेमा का डायलॉग अलग होता है, उनका नैरेटिव अलग होता है, नरेशन अलग होता है। यंग जनरेशन आजकल समझने लगे। मुझे लगा कि अगर हम इतने सालों से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सीगल हमारा ग्रुप है जो बहुत लड़के, एनएसडी भी अभी बहुत इंस्टीट्यूशन हुआ है, इंस्टीट्यूशन के कारण अच्छे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस आए हैं असमिया फिल्म, और प्लस हमारा क्या कहते हैं सिनेमा मेकिंग का कॉस्ट कम हो गया है, तो एक्टर अच्छे अच्छे एक्टर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत बढ़िया। आपने दादा लक्ष्मी के लिए, ये हरियाणवी मूवी है जिन लोगों को पता नहीं है, और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट फिल्म इन हरियाणवी। कैन वी प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट? प्रोड्यूसर, ओके। आप एसमीज फिल्म इंडस्ट्री को या एसमीज फिल्म मेकिंग को आप क्या सलाह देंगे या एडवाइस देंगे? क्योंकि आप भी रीजनल मीडिया से आप जुड़े हुए हो, और हम लोग का भी इंडस्ट्री ऐसा है कि जॉय मोटी से लेके अभी तक हम लोगों के पास टैलेंट है, सब कुछ है, पर कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग इतने ऊंचाइयों पे या वो लाइमलाइट ग्रैब नहीं कर पा रहे। आपका क्या
सुझाव रहेगा? जी, दादा लक्ष्मी फिल्म है जो एक फोक आर्टिस्ट की कहानी है, बस 1 मिनट में बता दूं, जिनको 108 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं पूरे वर्ल्ड में, और नेशनल अवार्ड भी मिला है और कांस में भी दिखाई जा चुकी है। तो ये इकलौती हरियाणवी फिल्म है जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जगहों पर, मतलब काफ़ी 2 जगह सिलेबस में भी लगी है। तो इस तरीके की, जिसको शेक्सपियर और कबीरदास की उपाधि मिली है हमारे इस कवि को या इस फोक आर्टिस्ट को। तो मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब देते हुए कि कभी भी होता क्या है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं। क्या है कि सहज आराम से जो मिल जाए, रील बना लो, ये कर लो, शॉर्ट फिल्म कर लो, फिल्म बनानी है चलो 30 लाख में, अरे अरे एक लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, साइकिल से कार टकराई, प्यार हो गया, और 1-2 गाने, एक आइटम सॉन्ग, थोड़ी गालियां, थोड़ा ये, और मारधाड़, बस फिल्म हो गई। ज्यादातर भोजपुरी फिल्मों में भी और बहुत सारी फिल्मों में ये एक फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी दादा लक्ष्मी में ना तो कोई हीरोइन है, ना रोमांस है, ना कोई रोमांटिक सॉन्ग है, ना गालियां हैं, ना डबल मीनिंग के डायलॉग हैं, ना आइटम सॉन्ग है, और ना ही ग्लैमर है, मतलब ग्लैमरस लड़कियां जो होती हैं। तो मेरे राइटर ने और प्रोड्यूसर ने बोला था, भाई इसमें कुछ भी नहीं है, हरियाणा में वैसे ही दर्शकों की कमी है, कैसे देखेंगे लोग, क्यों देखेंगे, फाइटिंग भी नहीं, थप्पड़ तक नहीं है। तो मैंने बोले सपना चौधरी का एक आइटम सॉन्ग डाल दो। अच्छा, 125 साल पुरानी फिल्म है, 1903 में पैदा हुए थे, 1945 में मर गए थे, उसी बीच की कहानी है, और उसमें बोल रहे सपना चौधरी जो आज, उसका आइटम सॉन्ग डाल दो। अब मैंने बोला, मैं एक जिंदगी में पहली बार मैं एक फिल्म करने जा रहा हूं, और मैंने बहुत सारे 5 साल लगे फिल्म बनने में, मुझे मालूम है आपकी फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ, काफी टाइम लगा, और अच्छे से लोगों के ताने सुनने पड़े, घर वालों के ताने सुनने पड़े, अरे क्या मुगले आजम बना रहे हो क्या, तो मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ, अगर आपको लेकिन लीक से हटके काम करना, क्योंकि आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, एक से बढ़ के एक शॉर्ट फिल्म, एक से बढ़ के एक गाने, एक से बढ़ के एक रील वगैरह, ये वो पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिलता है। लोगों के पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी बोर हुए, आधा 5 सेकंड में ठड़क आगे निकल जाओगे, तो इतना टाइम नहीं है आज। तो आप कैसे रोकोगे, कैसे उनको वो करोगे, उसका है जैसे लोकल टू ग्लोबल एक फॉर्मूला है कि किसी साउथ इंडियन की कॉपी मत करो, किसी हॉलीवुड की कॉपी मत करो, आपके गांव के अंदर जो है ना, आप उस चीज को उठाओ, उन व्यक्तियों को उठाओ आपके रीजन के अंदर। मैं बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक एक गांव में 20-20 कहानियां मिलेंगी, एक एक गांव के अंदर। अगर हम उसकी रिसर्च करेंगे, उसकी कहानी पे जाएंगे, अखबार की एक कटिंग मिलती है छोटी सी, किसी ने आत्महत्या कर लिया, ये हुआ वो हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, चले गए। लेकिन अगर आप उसकी तह में जाओगे तो क्या कहानियां मिलेंगी, क्या 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 मिलेगा। हमको बस वो ढूंढने की कोशिश करनी है। विनोद अनुपम बिहार के एक वो हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिला उनकी बुक और जर्नलिज्म के लिए, तो उन्होंने बोली थी, ये फिल्म देखने के वो जूरी में थे नेशनल अवार्ड में, तो उन्होंने बोला था कि हर रीजन में अपने अपने दादा लक्ष्मी हैं, ऐसे फोक आर्टिस्ट या ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन हमको पहचानने की जरूरत है। बस हम क्या करते हैं कि हमको बड़ा आसान तरीका चाहिए, आसान वो चाहिए बजट में, मतलब पहले से ही, अगर मान लो हेलीकॉप्टर से आना है तो पहले लिखने से पहले ही सोच रहे थे नहीं बजट नहीं है तो हेलीकॉप्टर नहीं, अलास्का में शूटिंग करनी है, नहीं अलास्का नहीं, मनाली ठीक है, नहीं, अरे लिखने में कंजूसी काहे करनी है भाई, लिख तो दो, लिख दो, जितना ब्रॉड माइंडेडली लिख सकते हो, जितना खर्चा भाड़ में जाए बाद में देखेंगे, चाहे बैलगाड़ी पे आए हेलीकॉप्टर के बजाय, बाद में देखेंगे, पहले लिखने में क्या कंजूसी करनी है। क्या पता उस लेखनी को कोई करण जौहर या कोई बाहुबली टाइप प्रोड्यूसर वो देख ले और वो वही चीज मंगवा दे, क्या पता। तो लिखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैंने भी यही किया, बहुत कुछ, मेरे ख्याल 17 किताबें पढ़ी, उसकी रिसर्च, जिन्होंने उनके ऊपर पीएचडी करी थी जिन लोगों ने, वो सारी मैंने पढ़ी, और 17 किताबें पढ़ी, और उसी टाइम के कच्चे मकानों पे शूटिंग करी, जहाँ बिजली के तार नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं,
कच्चे रास्ते हैं जहां मतलब रेत डलवा ट्रक के ट्रक भरवा के कच्चे रास्ते बनाए गए। तो इस तरीके से बहुत कुछ पीरियड को लेकर के किया गया। जो उत्तम सिंह जी का संगीत है, जो क्योंकि म्यूजिक आर्टिस्ट थे, संगीत में यात्रा थी ये, म्यूजिकल जर्नी थी फोक आर्टिस्ट की, तो उत्तम सिंह जी का म्यूजिक किया गया। जयंत देशमुख जी का आर्ट डायरेक्शन, जिन्होंने प्रकाश झा के वो हैं, और जिन्होंने दिल तो पागल है, गदर वगैरह का म्यूजिक किया है, वो म्यूजिक कर रहे हैं इसका आप सोचिए। और वो फोक आर्टिस्ट ऐसे हैं कि उन्होंने हरियाणवी एक फिल्म में पहले धमाल किया हुआ है, उन्होंने चंद्रावल फिल्म में उनके कमाल के गाने उन्होंने किए हुए हैं, इसलिए मैंने उनको चुना। और माला डे जिन्होंने रुदाली फिल्म का कॉस्ट्यूम किया था, उनको मैंने कॉस्ट्यूम, टेक्निकली मैं सबको कॉस्ट्यूम आपके सुप्रतिम बोल हैं जो सत्यजीत रे से वहाँ से पास आउट है कैमरा में, उनको नेशनल अवार्ड मिला था जब मुझे ये मिली थी फिल्म को, हैं। हाँ, वो एक बंगाली फिल्म थी उसकी ब्लैक एंड वाइट, बहुत अच्छा कैमरा था, मुझे अच्छे से याद है। तो उसने उनको वो मिला, वो कैमरा किया हमारा। तो कुल मिला करके मतलब जो टेक्निकल टीम थी, क्योंकि हरियाणवी फिल्मों को मैंने देखा, जब हम रीजनल सिनेमा आप देखिए, हमको सबसे बड़ी कमी टेक्निकल लगती है, कैमरा वर्क, एडिटिंग। ये एडिटर जो श्याम बेनेगल के एडिटर रहे हैं 30-35 साल तक, उन्होंने असीम सिन्हा, उन्होंने एडिटिंग किया है, उनसे करवाया मैंने कहा नहीं करनी आपको, चाहे कुछ कर लो, कोई डेट जैसे जो भी दो। तो मैंने मतलब इसमें मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। एक्टर सब नए हैं, 5 एक्टर शायद पुराने होंगे जिन्होंने कभी कैमरा फेस किया है, अदरवाइज सारे मैं घूमता रहा, ढूंढता रहा। यशपाल जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपके मूवी ने, सिनेमा ने बहुत अच्छा किया सिनेमा घरों में, या बहुत अच्छा नहीं किया? हरियाणवी टेरिटरी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी हमको 1 करोड़ के भीतर मिल गया था, जिसमें से आधा हमको उनको देना पड़ा। फिर हमने OTT में डाली, 1 करोड़ वहां मिल गया हमको, 1 करोड़ की सब्सिडी मिल गई, पैसा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और मुझे नहीं भी होता तो भी मुझे दुख नहीं था, क्योंकि हमने इतना नाम और इतना अच्छा फेम कमाया है। इस फिल्म की आज ये कल्ट बन चुकी है, जो आज से 20 साल 50 साल बाद इसको देखा जाएगा। मैं उसके लिए प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरा वही सवाल है বাৰুল দা, एक्चुअली आमार অসমীয়া सिनेमाय इमान ভাল करे, जेनेके विलेज रॉकस्टार ग्लोबल रेकग्निशन पाइছে, किन्तु एट द सेम टाइम सिनेमा घरत सिनेमा चाबले नाजाय, किछु सिनेमाय बाजेटर कारणे बहुतखिनि कन्स्ट्रेन करे, जेनेके तेखेते कले जे हेलिकप्टर নহয় बेलगाड़ी দিব লগা হয়, बिकज ऑफ डेफिनेटली बाजेट कन्स्ट्रेन। इफाले आमी देखो जे साउथ इंडियन सिनेमा बहुत ভাল কৰি আছে। বাহুবলীয়ে তো ৰিসেন্টলি বাজেট আছিলে 180 crores আৰু টাৰ্ণঅভাৰ আছিলে 650 crores। তো সেনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিও আছে, ৰিজনেল চিনেমা, যোনে ৰিজনেল চিনেমাও বনায়, ফৰ পেন ইণ্ডিয়াও বনায়, গ্লোবেলি সেনেকুৱা চিনেমা চলে। এই গেপটো কিহৰ কাৰণে? करीब 5 साल से मैं मुंबई में हूँ, आना जाना हो रहा है, आपने बोला इसीलिए बोल। तो मुंबई में जाके देखा, हर एक डिपार्टमेंट में रिसर्च जो करते हैं वो लोग मिल के करते हैं फिल्म। हमारे असमिया में फिल्म में क्या हो रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब तक पकड़ के रखे वो खुद अकेले करते हैं, ना डिस्कशन, ना वर्कशॉप, ना इन डिटेल में काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा फिल्म टीम वर्क होता है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल के काम करें। ये अभाव था, लेकिन धीरे, एक तो कंपटीशन करना नहीं है, साउथ के जो कॉपी कर रहे हैं, 1 फिल्म या 2 फिल्म हिट हुई है, अब देखिए असमिया में कॉपी करना ही नहीं चाहिए। असमिया फिल्म आपने जो कहा वही, अगर असमिया फिल्म को आगे जाना है, इन्होंने जो किया अपने लोकल चीज को ही, अपने छंद में ही उनको डिस्कवर करना पड़ेगा, तभी दुनिया भर हम जा सकते हैं। मार्केटिंग सिर्फ उसी हिसाब से अगर देखें, सिर्फ सिनेमा हॉल ही नहीं है। अगर हिंदी फिल्मों में देखिए, जब प्लानिंग करता है उसी वक्त वो लोग डेट भी तय करते हैं, सिनेमा हॉल में ये जाएंगे, 1 महीने के बाद ये OTT, पहले वो लोग टाई अप कर लेते हैं ये डिजिटल के लिए। वो मुझे लगा हम इस पे भी ध्यान देना चाहिए। मार्केटिंग तो बहुत कम हो से नहीं, मार्केटिंग हमें नहीं आता। हमें बनाना जितना कठिन है, बेचना उससे भी ज्यादा कठिन है। लाइक ए किताब लिखना बहुत कठिन है, जिंदगी पर बहुत सोच के लिखते हैं, प्रिंट भी कर सकते हो आप,
लेकिन उसको बेचना आसान बात नहीं है। कौन खरीदेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन लकीली आप जो कह रहे हो कि ऑडियंस आना शुरू किया है, और कुछ ऑडियंस आजकल अब जाके देखे, लेकिन हर हफ्ते में अगर रिलीज होंगे तो नहीं आ पाएंगे, ये भी सही है, क्योंकि चॉइस है, असमिया फिल्म है इसलिए देखना है, जबरदस्ती तो नहीं है ना। तो लेकिन एक विदुर भाई एक फिल्म मैंने देखी है, उन्होंने स्ट्रेटेजी Just देखी है wanted ना, to- yeah, ना बहुत स्टार बढ़िया, है, हाँ। ना असमिया कोई स्टार है, ना कोई है, सुपर डुपर हिट है फिल्म, क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रेटेजी पहले से यूट्यूब में छोटी छोटी कहानी बनाना शुरू कर दिया। एक एक्टर भी नहीं देखोगे आप, लेकिन उनका जो एक्टिंग स्तर है, आपने जो कहा ना, वो लोग एक्टिंग नहीं करते, बिहेव करते हैं, लगे सिचुएशन को उद्घाटन करते हैं। क्या मजेदार एक्टर। और एक पॉजिटिव नोट मैं बता रहा हूं, आजकल यंग जनरेशन असमिया फिल्मों के साथ ऐसा भी हो रहा है, शायद आप जानोगे। चलो 3-4 लड़के मिल गए, ये साउंड में पास आउट है, वो पास किया, उसको भी ले लिया, ये उसमें मेकअप के लिए ये 3-4 बंदे एक साथ हो जाते हैं, टीम मिल के काम करना शुरू कर दिया डिजिटल कम खर्चे में। और सुन के एक फिल्म है, एक लड़का हमारे घर में आए, वो कुछ कंप्यूटर का काम कर रहा है, उसने मैंने कहा मेरे फिल्म और बाकी है, मैंने शूटिंग खत्म कर दिया तुमने? कहते हाँ। कितना खर्चा? 1 लाख। मैंने 1 लाख पे फिल्म शूट? चलो उसका विश्वास नहीं किया, लेकिन कर दिया। और नो बजट बोल के एक बंदे ने फिल्म किया, सत्यजीत राय से, कलकत्ता से पास आउट है, उनका नाम महर्षि, उसकी शॉर्ट फिल्म शायद उसमें भी, हाँ फिल्म बुसान गए अब अभी वो कह selection रहा हूं। में। तो वो लड़का नो बजट बोल के 3-4 लड़कों को एक मुर्गी और एक बंदे को प्रिपेयर किया, मुर्गी और बंदे को प्रिपेयर करके उसने फिल्म बनाई, और वो फिल्म बुसान में कंपटीशन लेवल पे चले गए। वाओ, अमेजिंग। अभी शायद आपके साथ महर्षि आपकी भी काश्यप। फिल्म है। मेरी फिल्म नहीं है अभी, आपके इस बार नहीं इस है? बार नहीं है, okay. लास्ट ईयर। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बात कितने करोड़ की बात नहीं है, बात इनोवेटिव आइडियाज की। आपने जो कहा घर घर में कहानी है और खर्चा कम है, अगर, लेकिन अकेला मत करिए, प्रोड्यूसर को फंसा के, मिलजुल के करिए, डेफिनेटली आप बहुत ऊपर तक जा सकेंगे। श्योरली। और लास्ट मुझे एक चीज़ जाननी है कि अभी तो OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, हम घर घर में हम लोग देखते हैं, कोरियन मूवीज़ देखते हैं, बहुत शौकीन हो गए हैं इंडियन लोग कि कोरियन मूवीज़, वेब सीरीज़ देखते हैं। OTT का असमी सिनेमा के साथ क्या तालमेल है, और क्या ये भविष्य क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ OTT एंड असमी सिनेमा? योर लास्ट रिमार्क्स, सब लोग ही बोल सकते हैं, स्टार्टिंग विद रीमा। एक्चुअली अभी जो ये स्पेशली आफ्टर कोविड it's lot of changes happened, and earlier we had probably 2-3 kind of very popular OTT platform. Now to it is like there are so many, so I think it's a business model for them. And earlier they they used to take mostly all kind of cinema, independent films like commercial films, but now especially they are focusing like especially the business On thing. the commercial Yes, ones. commercial, Okay. yes, yeah. Okay. Adilda, what are your views? Oh, sorry. आदिल बाहर मुख हो गए, Sorry. Baharulda. Sorry. वहाँ कैसे कि असम में असमिया फिल्म के लिए OTT मार्केट 0, क्योंकि अभी मेरी एक फिल्म बनी थी अभी, द 7th स्ट्रिंग, पहले उन लोगों ने बोला 3 लाख देंगे, अब करोड़ के हिसाब बात कर रहे हो ना, 3 लाख से शुरू। जब रिलीज हो गई फिल्म तो बोलते हम अब तो रिलीज तो हो गए, हम 1.5 लाख देंगे, तो हमने दिया नहीं, यूट्यूब में छोड़ दिया। चलो एटलीस्ट लोगों ने तो देखा। But you get some kind of return. No. वहाँ से। No return. सिनेमा हॉल में नहीं आई उस समय, कोरोना के बाद लोग फिल्म सिनेमा हॉल पे नहीं आने, डर रहे थे ना, धीरे धीरे आने लगे, अब बहुत आने लगी है लोग, उस समय नहीं आए। यशपाल जी, आपका क्या इसका कहना तो है? फायदा ही फायदा हुआ। नहीं, मेरा ये मानना है कि OTT के आने से जो लोगों के सपने थे कि मुंबई जाकर कुछ करना है, उन लोगों को, टैलेंट को बहुत काम मिला है।
और नए नए टैलेंट नए नए काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि सुभाष घई, राजकुमार संतोषी, श्याम बेनेगल, आज आज ये लोग नहीं चाहिए, आज ये लोग चाहिए। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, छेलो शो, ये अपनी रीमा जी की फिल्म, इस तरीके की फिल्मों जो यंग जनरेशन है जो नए आइडियाज़ लेकर आ रही है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। नागपुर यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था, उसका रिजल्ट हमें तैयार करना था, राजकुमार हिरानी और मुझे। तो हम वहाँ गए थे, हमें 18 फिल्में आई थी लास्ट, जो पूरे 150-200 में से, तो वो हमने देखी आपस में और हम दोनों अपने अपने पहुँच गए वहाँ। तो आप बिलीव करेंगे, हम दोनों का रिजल्ट फर्स्ट फिल्म का एक ही था। इतनी 50-50 लाख की, पता नहीं कितनी लाख की शॉर्ट फिल्में थी उसमें कंपटीशन में, लेकिन किसको पहला अवार्ड मिला आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक फोटोग्राफ के ऊपर कैमरा है और उस फोटोग्राफ में लिखा है नीचे ताजमहल, और वो ब्लैक है पूरी फोटो। वो आगे ऐसे पैन होता है कैमरा, उसके नीचे लिखा है लाल किला, और वो ब्लैक है सारी। आगे जाते हैं एफिल टावर, ब्लैक है। आगे जाते हैं चाइनाज वॉल, ब्लैक है। आगे जाते हैं ऐसे 7-8 जगह आके एक जगह रुक जाता है, वहां लिखा है दे नीड्स आईज। Amazing. आंखें, नेत्रदान करो। तो हमारे कलेजे के अंदर घुसती है वो बात, कंटेंट, आइडिया, ये जो चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल फिल्मों में इतना अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है जितना ओटीटी पे आ रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम है उसके, जो वल्गरनेस, डबल मीनिंग के डायलॉग या गालियां ठूसी जा रही हैं, सेक्स ठूसा जा रहा है। दैट अदरवाइज इट्स ब्रिलियंट। बहुत बढ़िया. Thank you so much to the amazing panelists I that think is we have some present here. questions Oh yeah, some questions for you from the audience. audience. First one, let's put up on the screen. That's by Tristimita Raskwa. Can you just raise your hand and stand? Yeah, stand up. How do you act with a non-professional actors and bring out such natural performance? Also, what role does Assamese culture play in shaping your cinematic style? I believe this question to Rima. Rima. Natural performance and You can have a look there also. okay. Non-professional actors, because thank you. When I was in Mumbai, then what I realized that to act and to perform, you need to feel free, comfortable. So when I was back and when I started making movies, then I followed that, to having, a naturally a bonding with my actors. And also it's about listen and love, and respect. It is a shared space. I'm a writer director. It doesn't mean that, it's just my film. You just have to listen to them and to love them, and allow to perform, give them time. And it was possible because I was mostly, we didn't have such big crew. So that I think solitude and time we got, it also I think helped. And the next next question was? No, next. I think you have almost That's answered it, the whole right? thing. Yeah. Next question for Professor for Yaspal sir. Can you suggest some quick suggestions to Assamese film industry as a mainstream Bollywood actor in terms of economical aspects to prosper more on a global scale? आपके लिए. यशपाल शर्मा। नहीं, देखिए, आज का ऐसा युग है कि आपका अगर कहानी में दम है, कंटेंट में दम है और आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपके टैलेंट है अगर आपके अंदर, तो आप खुद सोचिए ना। एक भिखारी ने गाना गाया था, सारी दुनिया में फेमस हो गई हो। मंडल, क्या नाम था उनका? हाँ, एक लड़की ने, कॉलेज की लड़की ने आंख मारी थी तमिलनाडु में, सारी दुनिया में फेमस हो गई थी। तो आज ये तो बहाना है कि मेरे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे रीच नहीं है। कहाँ रीच नहीं है? आज आप अमिताभ बच्चन को भी डायरेक्ट ट्वीट कर सकते हो,
आज ये है, तो किसी को भी आप रीच कर सकते हो, वो बात अलग है, उसमें थोड़ा टाइम हो सकता है, थोड़ा टाइम लग जाए। अगर आपका सामने कोई टैलेंट दिख रहा है, हमको साफ दिखता है स्टैंड अप कॉमेडी में कौन अच्छा कर रहे हैं, है ना, कौन क्या एक्टिंग में कौन कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्मों में देख के हमें पता लग जाता है, चाहे वो नया क्यों ना हो, नाम बेशक ना जाने, लेकिन फिर भी लग जाता है। सारे नवाजुद्दीन, इरफान खान या पंकज त्रिपाठी नहीं होते सारे, कुछ ऐसे नए करेक्टर, हमको शक्ल पहचान, वो नाम नहीं याद होगा लेकिन लगा यार ये कौन है। तो बहुत सारे, अभिषेक बनर्जी को कितने लोग जानते हैं, या मतलब हाँ, या कुमुद मिश्रा को कितने लोग जानते हैं, जितने कमाल के काम करते हैं ये लोग, और हमको लेकिन कईयों को नाम नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन अप्रोच टू एनी डायरेक्टर टुडे, एनी एक्टर, मैं बता रहा हूं, अगर किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, बट मतलब आपके पास उसके लिए उतना वो होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप, हाँ कंटेंट भी हो और उतना उसकी सहूलियत भी, तो बजट अभी रणवीर कपूर तो नहीं करेगा ना फ्री में काम, या कोई नहीं करेंगे, जो जिनको बुला सकते हो, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हम कंटेंट देख के ही कई बार भूल जाते हैं, चलो छोड़ो पैसा कम ले लेंगे लेकिन करेंगे क्योंकि फिल्म अच्छी है, और ऐसी कई फिल्में कर चुके हैं हम, जो कास्ट सिर्फ फेस्टिवल में घूमती रहती है। तो बेचारा प्रोड्यूसर भी बोलता है इसका पैसा तो नहीं आया, मैंने कहा ये गारंटी हमने नहीं दी थी, आपने हमें लिया, हमने किया, आपको इतने अवार्ड मिल गए, नेशनल अवार्ड भी मिल गया, अभी और क्या करें बताओ। तो हमको जितना है, मुझे लगता है कि अगर कंटेंट अच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है दादा लक्ष्मी की तरह सिनेमा ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आर्टिस्टिक और कमर्शियल दोनों ब्लेंड हों, दोनों क्वालिटी, कमर्शियल हो मतलब पैसा भी कमाए और आर्टिस्टिक रूप से उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई भी जा सके और compete भी कर सके। मुझे लगता है ऐसा काम करना चाहिए। The third and last question for Baharul, and it's very good questions. Please have them on the screen. Why does Assamese cinema still struggle to balance mass content with quality, bold storytelling, and visual experimentation, especially when the youth today have so few films to truly look up to? How can we create more space for genuine creativity over the just profitable content? By Narihita Sanjeevani Bhuya. Can you raise your hand or just show your face? Stand up. Good questions. Right. That's, Very that's good a, question. That's, हाँ. that's the girl. थैंक यू बेटा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही ना, एक कहता है ना অসমত কয় ন কি চাই মেলিবা কথা আঁঠুৱা চাই মেলিবা, হয় না নহয়? তাৰমানে মোৰ एज एन एक्टर आई एम ए प्रोडक्ट, फिल्म इटसेल्फ ए प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए मार्केट चाहिए ना, बाजार चाहिए। हरियाणी फिल्म के लिए या बंगाली फिल्म के लिए बाजार वर्ल्ड वाइड है, असमिया फिल्म के लिए वर्ल्ड वाइड नहीं है। जितने सारे सिनेमा हॉल थे वो भी कम होते जा रहा है। ओके, तो ये टफ क्वेश्चन है। मैं भी विश्वास करता हूं आपने जो कहा, हमारा भी होना चाहिए। शायद इतने इन्वेस्ट करने वाले बंदा प्रोड्यूसर नहीं आएंगे कि इतना इन्वेस्ट करे कि मार्केट से ज्यादा जाए और लॉस। वैसे ही जो फिल्म मेकर है आसाम में, वो फिल्म को प्यार करते हैं इसीलिए फिल्म बना रहे हैं ज्यादातर। प्रोफेशनलिज्म अभी तक मुंबई में है, जो मुंबई जैसा कंपनी प्रोडक्शन हाउस असम में नहीं है अभी तक, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। सो ये दर्द, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, मुझ में भी ये है कि हम में भी ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, उम्मीद तो करते हैं कि और फिल्म बने और लोग देखे, सब लोग देखे, लेकिन सबको खुश करना आप जैसे चाह रहे हो। शायद कुछ लोगों को सिंप्लिसिटी ज्यादा पसंद है, विलेज रॉकस्टार को मुझे पसंद है, शायद किसी को ना पसंद है। ये तो चॉइस है ही ना, अलग अलग। बट बस इतना ही। एक्चुअली एक फिल्म बनाने के लिए एक इंटेंशन होती है, किस तरह का इंटेंशन से आप ये फिल्म बना रहे हो, और उसके लिए हर एक जो लोग हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ गुड, आई मीन अ गुड फिल्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर न्यू ऑल्सो कमिंग जनरेशन, एंड अ पोएम, अ पोइट्री, अ बुक हो और गुड म्यूज़िक हो, कोई भी चीज़, तो हर एक को वो सपोर्ट आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होती है और सपोर्ट करना ज़रूरी होती है।
तो बहुत बड़े like the kind of consumers we have, a big blockbusters films also 3% 4% लोग देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कर लेते हैं. तो उसके लिए if I am making movies, you know, one after another, so if you think as a, I mean, especially from Assam, आपको लगता है कि ये इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, तो एक तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उस तरह से कंटेंट आपको देखना है. और बहुत बहुत बातें, जैसे विलेज रॉक्सर्स जब ट्रैवल कर रही थी, तो अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली आउटसाइड इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फिल्म फेस्टिवल्स. तो उनका जो टेस्ट डेवलप्ड होती है वो बचपन से होती है. तो उस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है. हम अभी बचपन से जो देखते हैं, तो उस तरह से ही टेस्ट भी डेवलप होते हैं. तो मुझे लगता है चिल्ड्रन, स्पेशली यूथ के बीच में, तो बहुत सारे फेस्टिवल में मैं जाती हूँ, तो उन लोग बनाते हैं. छोटे छोटे बच्चे जो है, उन लोग घूमते रहते हैं उस समय में. हमारी फिल्म वहाँ दिखा रहे हैं, तो उन लोग भी अपनी फिल्में बना रहे हैं. तो उससे क्या होता है, जो मैं अभी विलेज रॉक्सर्स बना रही हूँ, तो मैं अपने खुद सोच के बना रही हूँ. लेकिन बचपन से हमें कभी we need to show the mirror to each other. एडल्ट एंड यूथ या चिल्ड्रन क्या सोचते, वो बचपन से उस तरह का एक माहौल पैदा करना, सिस्टम पैदा करना ज़रूरी है. ऐसे बहुत बातें होती रहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, क्यों नहीं करते. अभी आपने जैसे बताया कि 1 लाख रुपए में फिल्म बना दिया, विलेज रॉक्सर्स भी ऐसे ही 2-3 लाख में ही बनी हुई थी. तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं अच्छी फिल्म बनाने के लिए, लेकिन वो सिस्टम जो है कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट वे में वो करने के लिए, वो एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. बिकॉज दिस गुड फिल्म्स, गुड आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एज वेल एज नेचर. Thank you so much. That comes to an end to this panel. आप लोगों ने इतनी बढ़िया से, यशपाल शर्मा जी है, बहुत बढ़िया लगा आपको सुन के. हिंदी सिनेमा के बारे में, दादा लक्ष्मी के बारे में हम लोगों ने जाना. और बारुल दा, he is a veteran in this field of filmmaking, theatre, Hindi cinema, everything, and we have a lot to learn from him. He has a lot to cater to film industry of Assam, and I hope and pray, Rima Ba, continue with your fabulous work. We all the filmmakers get an inspiration. হাতত পয়সা নাথাকিলেও সিনেমা যে বনাব পাৰি, you are a fine example of that. And I think because of that we will keep making films in Assam, based in Assam, rural Assam. I think that's the portrayal that we should take to a global platform. And that comes to an end. Thank you. I hope you all enjoyed.